Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Story if you're new here, then please like, share, comment, and subscribe to my channel. So yeah, today we'll be going to start with the chapter foreign exchange. I've already posted some or the another videos based on some chapters of economics. So just I need to help you guys. I know half yearlies are appearing, like approaching to you, so that's why I thought why not to make the video on this chapter because students find this chapter to be difficult ones. If you want any video on a specific chapter, just comment down below. It could be your national income, it could be your money and banking, or whatever the chapter. It could be of Indian economic development as well. I've already posted three chapters for economic Indian economic development. That's your infrastructure, sustainable development, and one more that is comparative. So you can go on to my channel and you all can see comparative. Okay, here it's there. Then it's for infrastructure, and for sustainable development you can go down and you can just refer to these videos. Yeah, these three videos are for sustainable development. So today we'll be going to start with the chapter foreign exchange. So what is foreign exchange? What is foreign exchange? Foreign exchange आपकी होती है कोई भी outside of Indian currency. Let's say हमारे लिए yen is a foreign exchange. That is all the currency of rest of the world other than domestic currency. In India, yen is foreign exchange. अगर हम बोलने लगे इंडिया में हमारा कैनेडियन डॉलर, हमारा रशियन डॉलर, हमारा पाउंड स्टर्लिंग आर ऑल फॉरेन एक्सचेंज. Similarly, for an US person, योर इंडियन रुपी इज अ फॉरेन एक्सचेंज, राइट? तो हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़कर कोई सी भी कंट्री की करेंसी हुई सारी फॉरेन एक्सचेंज होती है. मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू क्लस्टर अपॉन द कंसेप्ट्स वेरी वेल, राइट? देन व्हाट्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर पूछे जाते फॉर 2 मार्क का क्वेश्चन यू शुड राइट द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, or foreign exchange rate is the price at which one currency is stated in terms of another currency. So दोनों definition you should write down for a 2 marker. I have just jot down the best definition I could find, right? I have referred to three books for making all these three notes, right? Then if I take an example, होता क्या foreign exchange rate? Let's say for एक $1 is equal to 60 rupees. हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के टर्म्स में लिख रहे हैं. हमें पता है हमें $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 60 रुपए देने पड़ेंगे. हमें ये भी पता है हमें $1 के लिए कितने डॉलर, $1 खरीदना हमें इंडियन 60 रुपीज देने पड़ेंगे. या आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. आई डोंट नो व्हाट्स द करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट गोइंग ऑन, राइट? और यूएस के लोगों को 1 रुपी इंडियन के खरीदने के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे? 0.0166 यूएस डॉलर्स. सो दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. हमें ये ऑलरेडी पता चल रहा है मार्केट है तो ऑब्वियसली ये प्लेस होगा. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर नेशनल करेंसी और नेशनल करेंसी कुड बी वेरी. For Indian, it could be your Indian rupees. For US, it could be US dollar, or it may vary from country to country, right? So it's a place where national currency is exchanged, converted, and traded. If any one of you don't write even a single one of this, your marks will be deducted because it's very important to write all the functions of a foreign exchange market. So it could be exchanged, it could be converted, or it could be traded. Now let's come to the next topic. This is the most important topic of the chapter foreign exchange, and I know if that this topic like seems to be a bit difficult for all of you, but one more thing, this is the most easiest one. Let's get into this topic once. Currency appreciation, it refers to the increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. So what does it actually means? It means when the currency of Indian rupees increases in terms of domestic currency. In terms of domestic currency is known as currency appreciation. Okay, let's take an example. First of all, पहले हमें $1 के लिए इंडियन 70 रुपीज देने पड़ रहे थे. मतलब अगर हमें बाहर का यूएस डॉलर खरीदना है तो हम 70 रुपए इंडिया का देंगे जब हमें $1 मिल रहा होगा. अब क्या हो गया? $1 के लिए अब हमें 60 रुपीज देने पड़ेंगे. मतलब हाँ, पहले जो हम $1 70 रुपए में खरीद रहे थे अब हम $1 60 रुपए में खरीद लेंगे. तो ऑब्वियसली हमें पता चला हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई. तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं करेंसी अप्रिसिएशन. अभी दो केसेस में हो रहा था बच्चा, एक और होता है करेंसी अप्रिसिएशन, एक और होता है करेंसी रीवैल्यूएशन. जब हमारा नेचुरली हो रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग, मतलब कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई हम इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे होते, ये ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा था, तो हम बोलते हैं करेंसी अप्रिसिएशन. और जब गवर्नमेंट
या फिर हमारी कर रही होती है, इंटेंशनली कर रही होती है, तो उसे हम बोल रहे होते हैं करेंसी रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन बोथ मीन्स हमारी इंडियन करेंसी के वैल्यू को इंक्रीज होना। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर होगा। ऑब्वियसली हम पहले 70 रुपए दे रहे थे, अब हमारा कम पैसों में काम हो जाएगा। ऑब्वियसली जब हम, अगर मैं इसका एक लेमैन एग्जांपल लूं, जब हम एक सामान पहले, एक नोटबुक 70 रुपीज में लाए, तब हमें 60 रुपीज देने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें कम पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो नोटबुक है, जो नोटबुक का प्राइस है वो कम हो गया। अब नोटबुक का प्राइस कम हो गया, अब अगर हम नोटबुक को इधर इक्वेट कर ले यूएस डॉलर से, तो यूएस डॉलर की प्राइस कम हो गई, यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो इंडियन रुपीस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इट मीन्स आवर डोमेस्टिक करेंसी इज वैल्यू हैज इंक्रीज। ऑब्वियसली हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। देखो मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा है कि हम पहले $1 के 70 रुपीज दे रहे थे, और अब हम $1 के लिए 60 रुपीज दे रहे हैं। मतलब वी हैव टू गिव ₹70 फॉर $1, बट नाउ we have to give 60 rupees for $1. This means that our country's currency is appreciated. इसे हम revaluate भी बोल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स सोर्स क्या है, तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई है या फिर तुम इंटेंशनली कर रहे हो। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, जो इंडियन रुपी है वो हमारा अप्रिशिएट होता है प्राइस। अब $1 का प्राइस हमारा 75 से 70 हो गया। मतलब पहले हमें $1 के लिए 75 रुपीज दे रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब हमें $1 के लिए 70 रुपीज देने पड़ेंगे। करेंसी अप्रिसिएशन, ऑब्वियसली करेंसी अप्रिसिएशन का ये भी एग्जांपल है। अब करेंसी अप्रिसिएशन से होता क्या है, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है यार, तुम ऑब्वियसली देखो, जब तुम एक नोटबुक पहले 70 रुपए की खरीद रहे थे, अब 60 रुपए की खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम ऑब्वियसली उसको ज्यादा परचेज करोगे ना, तो तुम्हारे इंपोर्ट्स बढ़ रहा है। बट अगर हम बात करें ऐसी कि अगर हम एक नोटबुक पहले 70 रुपीज की खरीद रहे थे और अब हम एक नोटबुक 80 रुपीज की खरीद रहे हैं, तो हम कम परचेज करते हैं नए सिचुएशन में, क्योंकि हमें पता है वो 10 रुपए में महंगा मिल रहा है। सिमिलरली हम, जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, हम इम्पोर्ट्स ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट्स कम करेंगे, राइट। अब बात है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमारा हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से हो रहा था, या फिर हम इसे मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? करेंसी डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जब हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है, जब हम पहले $1 के लिए 70 रुपीज दे रहे थे, अब हम $1 के लिए 75 रुपीज दे रहे हैं। जो मैंने आपका अभी नोटबुक का एग्जांपल लिया, मतलब हम पहले $1 के लिए 70 रुपीज ले रहे थे, अब हम $1 के लिए 80 रुपीज ले रहे होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी महंगाई हो गई, तो हम नहीं परचेज करेंगे ना उस नोटबुक को। तो सिमिलरली इधर आता है, हम पहले $1 के लिए 70 दे रहे थे, अब 75 देंगे, तो हमारी इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखो ये सिचुएशन दो, ये जो मैंने आपको ये लिख रखा है, just give me a minute, yeah, ये जो सिचुएशन है तुम्हारी, दो में एग्जिस्ट करती है। ये तुम्हारी करेंसी डीवैल्यूएशन में भी एग्जिस्ट करती है और डेप्रिसिएशन में भी एग्जिस्ट करती है, बट ये डिपेंड करता है कौन सा सोर्स तुम्हारा करवा रहा होता है। जब तुम्हारा मार्केट फोर्स करवा रहा होता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब तुम्हारे इंटेंशनली कोई गवर्नमेंट कर रही होती है उसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अब पहले हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर हो रहा था, अब हमारा एक्सचेंज रेट वीकर हो रहा है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो करेंसी अप्रिसिएशन होता है उससे हमारे इंपोर्ट्स बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स कम होता है। सिमिलरली मतलब अपोजिट होगा इसमें, तुम्हारा करेंसी डेप्रिसिएशन में डिक्रीज होगा इंपोर्ट्स और इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट्स, राइट। अब जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट कर रही होती है, राइट। डीवैल्यूएशन में क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्लान्ड रिडक्शन। आपको इधर फोकस करने की जरूरत है कि व्हाट इज हियर प्लान रिडक्शन रेफरिंग टू। प्लान रिडक्शन होता क्या है? प्लान रिडक्शन हो गया इंटेंशनली, जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं प्लान्ड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि यार हमें अब 1 रुपए, पहले हमें 1 रुपए लाइक $1 के लिए हमें 70 रुपीज देना पड़ रहा था, बट अब हमें $1 के लिए 80 रुपीज देना पड़ रहा है, तो और गवर्नमेंट ने करा होता है, तो हम इसे डीवैल्यूएशन बोल रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और इम्पोर्ट्स डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन बिल्कुल सिमिलर है, बस इट डिफर इन दी सोर्स। वो हमारा मार्केट फोर्स कर रहा था, ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इधर भी हमें एक वर्ड पे जो फोकस करना है वो भी सेम है, प्लान्ड। प्लान्ड का इधर मतलब हो रहा है इंटेंशनली, जब तुम खुद चाहते हो, जब वो तुम काम कर रहे हो, तो इंटेंशनली का मतलब होता है तुम्हारा मन है वो काम करने का, जब भी तुम वो कर रहे होते हो, उसे हम बोलते हैं इंटेंशनली।
तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के जो इफेक्ट्स है वो सेम है, और जो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स है वो भी सेम है हमारे। अब हम बात करते हैं, ये वही है सेम, मैंने थोड़ा क्रिस्प करके लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमें इस चैप्टर में तीन टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट आपका आपका आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्स्ट इज योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो व्हाट इज फिक्स्ड, हमें ये तो उसके टर्म से पता चल रहा है। फिक्स्ड का मतलब जो मतलब एक बार हमने जो सेट कर दिया वो वैसे ही रहे, वो हिले ना, राइट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम होता है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बहुत बार पेपर में पेग्ड एक्सचेंज रेट लिखा था जस्ट टू कंफ्यूज दी स्टूडेंट्स, राइट। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं व्हाट इज एक्सचेंज रेट सिस्टम। विल बी गेटिंग इनटू द डीपर नॉलेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग, sorry, managed floating exchange rate system. So first is your fixed. That means the system of exchange rate system is officially declared and fixed by the government. Fixed है obviously, मतलब कोई fix कर रहा है तो कौन fix कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, और ये officially declare कर रहा है exchange rate। अब मैंने इधर आपको बताया था कि इसका नाम होता है pegged exchange rate system। pegged से एक वर्ड आता है pegging, एक बार बोर्ड्स में आया हुआ था, आई गेस 2012 में आया था या 2013 में आया था, डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट या व्हाट इज पेगिंग। पेगिंग हमसे पूछा गया था फॉर वन मार्कर, तो हमने वी शुड राइट दैट व्हेन डोमेस्टिक करेंसी स्टार्ट टू वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसे हम बोलते हैं पेगिंग। हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ जब टाई अप कर देते हैं उसे हम बोलते हैं पेगिंग, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। So now, why fixed exchange rate system is important? It is important to maintain stability. Obviously stable रहेगा क्योंकि हमने उसे fix कर दिया in the fixed exchange rate system. अब हमारे पास ये दो situations है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिचुएशन तुम्हारी ये वाली एंड सेकंड सिचुएशन तुम्हारी ये वाली, आर दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इट इज गवर्नमेंट बाय फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड गवर्नमेंट सेल एक्सचेंज फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, उल्टा लिखे आते हैं, बट वी नीड टू रिमेम्बर कि जब हमारी फॉरेन करेंसी परचेज कब करेगा गवर्नमेंट, और फॉरेन करेंसी सेल कब करेगा गवर्नमेंट, जब हमारी एक्सचेंज रेट वीकर हो रहा है, एक्सचेंज रेट वीकर हो रहा है तब हमारी गवर्नमेंट बाय करेगी, और जब हमारा एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर हो रहा है गवर्नमेंट हमारी सेल करेगी फॉरेन करेंसी। और जो ये प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं पेगिंग ऑपरेशन। वो जब बाय एंड सेल कर रही होती है फॉरेन करेंसी को, इसे हम बोलते हैं पेगिंग ऑपरेशन। दैट इज ऑल एफर्ट्स मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कीप द रेट ऑफ एक्सचेंज स्टेबल। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो इसका की फीचर है, जब भी बहुत बार हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को बेटर मानते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोटिंग वंस, बिकॉज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारा स्टेबिलिटी नहीं होता। वील बी रीडिंग इट ऑन द लेटर नोट। नाउ व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाय करेगी। एक्सचेंज रेट वीकर कब हुआ, $1.70 का था, अब $1.75 हो गया। ये एक्सचेंज रेट वीकर हो गया तो ऑब्वियसली वो बाय कर रही होगी। मैंने बोला था ना, जब एक्सचेंज रेट वीकर हो रहा होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बाय करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से भी बोलते हैं, मतलब ये गोल्ड से पेक्ड था। मैंने इसका नाम आपको पेक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बताया ना, तो हम इसे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि गोल्ड से पेक्ड था। कब से कब तक ही पूछा जाता है, एक बार पूछा गया वाला ईयर, दैट इज 1880 टू 1914। ये एडिशनल नॉलेज आई एम गिविंग यू, राइट। अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है क्या, वैल्यू ऑफ एवरी करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। इसमें हम हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में स्टेट करते हैं, मतलब इंडियन करेंसी को हम गोल्ड के टर्म्स में स्टेट करेंगे, यूएस डॉलर को गोल्ड गोल्ड के टर्म्स में हम स्टेट करेंगे, और या कोई भी XYZ करेंसी होगी हम सबको गोल्ड के टर्म्स में स्टेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ $1 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स ऑफ डॉलर, सॉरी गोल्ड। तो $1 की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम ऑफ गोल्ड है। आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। और जो वैल्यू है ₹1 की वो है 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, राइट। तो $1 कैसे हमने निकाला, हमने फिर अब जैसे हम मैथ्स में करते हैं, हमने दो इसको और इसको इक्वेट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि $1 100/5 दैट इज ₹20 की इक्वल हो जाएगा, राइट। अब सो व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्टेबिलिटी। मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबल रहता है बिकॉज ये गवर्नमेंट हमारा फिक्स कर देती है, राइट। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड इट अवॉइड डे टू डे फ्लक्चुएशंस। इसे फ्लक्चुएशंस भी क्या होती है, अवॉइड करते हैं हम लोग। एंड इट लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी।
ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पॉलिसी तुम फॉर्मुलेट कर सकते हो, तुम्हें पता है फ्लक्चुएशन हमारी अब नहीं आएंगी. देन इट एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड. हाउ इट एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड? बिकॉज अगर कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करी, उन्हें पता है कि रिस्क बहुत कम है, स्टेबिलिटी इनकी कंट्री में, लो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर पेमेंट्स की, तो ऑब्वियसली हमारी फ्यूचर पेमेंट्स टाइम पे आ जाएंगी. थर्ड आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज. व्हाट इज मैक्रो पॉलिसीज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, माइक्रो पॉलिसीज एंड मैक्रो पॉलिसीज. जो आपकी मतलब इफ आई से नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट होती है उसे मैक्रो बोल रहे होते हैं, और जो आपके हाउस होल्ड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही होती है उसे माइक्रो पॉलिसीज बोल रहे होते हैं. तो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं मैक्रो पॉलिसीज, मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज देख रहे होते हैं, ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स. नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? क्या डीमेरिट्स होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के? फर्स्ट आता है आपका ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स. यार तुम्हें स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो तुम्हें रिजर्व्स तो देने ही पड़ेंगे ना. तो इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक बहुत बड़ा डीमेरिट होता है कि इसे हम सपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारी रिजर्व्स के साथ, राइट. देन अदर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल. जो नेक्स्ट टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टू पॉइंट्स इज एज, जो इसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल रहती है एंड इट जस्ट लीड्स टू द इंटरनेशनल ग्रोथ प्रोसेस सफर. ऑब्वियसली हम ज्यादा कैपिटल को मूव नहीं कर सकते. जो हमने पहले प्लान कर लिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हमें वही पूरे साल को एग्जीक्यूट करना होता है. तो अब क्या होता है, वैसे हमने कुछ प्लान कर लिया इन एक्स अमाउंट कि हम इतना ही अमाउंट ऑफ कैपिटल मूव करेंगे विद इन और लाइक आउटसाइड और दी विद इन द कंट्री, तो हम नहीं उससे ज्यादा कर सकते जस्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी. इसकी वजह से हमारी जो इंटरनेशनल ग्रोथ है वो सफर करती है. थर्ड पॉइंट आता है आपका डिस्करेज वेंचर कैपिटल. Discourage venture capital. What is venture capital? Venture capital refers to the investment in purchase of foreign exchange in the international money market. ये आपको डेफिनेशन याद करनी है कि what is venture capital. तो अब क्या होता है, हमारा जो वेंचर कैपिटल एक्चुअली होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, बाहर की कंट्री की करेंसीज परचेज कर रहे होते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट में. बट ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हमें डिस्करेज करती है for venture capital. Now let's come to the second one, that's flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system का next नाम है floating exchange rate system. It is a system in which value of currency is allowed to float freely, determined by forces of demand and supply. इसमें freely float करती है. जो हम अभी ऊपर पढ़ के that's fixed exchange rate system, उसमें मनी गवर्नमेंट सेट कर रही होती है. बट इन flexible exchange rate system हमारी forces of demand and supply सेट कर रही होती है, that's the market forces. इसमें हमारा सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता. बट हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसमें हमारा सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा होता है. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका दूसरा नाम आपका फ्लोटिंग होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? देखो इसमें हमें ये तो पता है इसमें रिजर्व्स नहीं चाहिए होते. ऑब्वियसली जो उसका डीमेरिट होगा वो इसका मेरिट होगा, दैट इज देयर इज नो नीड फॉर इंटरनेशनल रिजर्व्स. रिजर्व हमें मेंटेन नहीं करने पड़ते, जो हमें फिक्स में मेंटेन करने पड़ते जस्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी. हमें इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट इजिली कर सकते हैं. हमने पढ़ा तो उसमें कैपिटल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, डिस्करेज करता है वो. थर्ड आता है वेंचर कैपिटल, हम इजिली कर सकते हैं, प्रमोट करता है वेंचर कैपिटल, बल्कि जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो डिस्करेज करता है. नाउ लेट्स कम टू दी डीमेरिट्स. जो आपके फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स होंगे वो इसके डीमेरिट्स होंगे, राइट. जिसमें इनस्टेबिलिटी रहती है. जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो स्टेबल है, उसमें आपकी इंस्टेबिलिटी नहीं होती. सेकेंड आता है इंटरनेशनल ट्रेड. तुम इसमें इजिली इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था यार, तुम किसी भी कंट्री में अमाउंट कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तुम ये देखोगे ना कितने इजिली हमें अमाउंट रीपे हो जाएगा. तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में उन्हें पता है उनका अमाउंट बहुत इजिली रीपे हो जाएगा और लेस रिस्क है. बट इन फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम कोई भी कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकता, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट होता है और इसमें हाई रिस्क होता है. तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को भी डिस्करेज करा जाता है. देन उसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज. बट इसमें मैक्रो पॉलिसीज इजिली कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मेक्स मैक्रो पॉलिसी द डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे कोऑर्डिनेट करना, डे टू डे फ्लक्चुएशंस हो रही होती है एंड मेक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिफिकल्ट, राइट. Now let's get into the topic of what is the difference between fixed and flexible exchange rate system. ये तो बहुत जनरल है, ये तो खुद लिख सकते हो, but still I have written down. So determination of exchange rate system कौन determine करता है? तो it's fixed officially in terms of gold or any other currency by the government, but flexible exchange rate system is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange. So government का control कितना होता है? Complete government control, as government has only power to change it.
बट इधर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता, बिकॉज ये कौन करता है, मार्केट फोर्सेस. वन मोर थिंग बच्चों, whenever there is a difference asked, we need to write on the basis as well, right? Then if it comes for stability, obviously हम पढ़ चुके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा स्टेबल रहता है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं होता. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब हमें रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, यस और नो? हमें फिक्स में नहीं, सॉरी, फिक्स में करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, बट फ्लेक्सिबल में हमें नहीं करने पड़ते. एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट लीड्स टू डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाए थे, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, वही वाले कंसेप्ट है. मैंने आपको ये भी बताया था, जो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होती है गवर्नमेंट कर रही होती है, और जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होते हैं मार्केट फोर्सेस कर रहे होते हैं. तो जब भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका स्ट्रॉन्गर होगा, वीकर होगा, या तो वो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होगा, या फिर डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम आपका एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का. So it is a system in which foreign exchange is determined by free market forces, demand and supply, and can be influenced by the intervention of central bank. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैनेज फ्लोटिंग, देखो यार, ये बीच का है, ना कि फिक्स्ड है, ना कि ये फ्लोटिंग है. ये बीच का एक्सचेंज रेट सिस्टम है. जो भी बीच का एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसका मतलब तो ये हुआ कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर फ्लेक्सिबल क्यों होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर फिक्स क्यों होंगे. ये तो जनरल सी बात है, ठीक है. अब फिक्स्ड के क्या एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, हमने पढ़ा था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही होती है. तो इधर कौन इंटरवीन कर रहा था, सेंट्रल बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन इंटरवीन कर रहा होता है, सेंट्रल बैंक. और जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें कौन इंटरवीन कर होता है, उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही होती है. और अब हम करेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबल की बात करें, ये कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई करता है. बट कभी कभार ये सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवीन कर जाता है, फ्लेक्सिबल में बिल्कुल इंटरवीन नहीं करता, फिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बेसिस पे होता है, मार्केट फोर्सेस कुछ होते ही नहीं है. अब हम बात करते हैं, इसका दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग. डर्टी फ्लोटिंग में हम बोल रहे होते हैं मैनेज फ्लोटिंग. हम डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है, देखो दो टाइप की फ्लोटिंग होती है, एक होता है क्लीन फ्लोटिंग, एक होता है डर्टी फ्लोटिंग. ठीक है, अब बस आप ये याद कर लो, इसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं. इसका कंसेप्ट और नहीं है हमारे सिलेबस में, एंड इफ यू वांट अस लाइक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वीडियो, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. देन इट सेज सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाय और सेल फॉरेन करेंसीज. हमने ये भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो बाय और सेल कर रही होती है, जिसे हम बोल रहे होते हैं pegged operations, right? Pegging operations. So similarly central bank, उधर गवर्नमेंट कर रही थी, इधर सेंट्रल बैंक कर रही थी, क्या, बाय और सेल फॉरेन करेंसी, किस लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, राइट? और हमारी इंडिया ही फॉलो करी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. 1994 से हमारी कंट्री सिर्फ और सिर्फ मैनेज फ्लोटिंग कर रही है टिल दिस टाइम, एंड वी नीड टू लर्न दिस ईयर बिकॉज इट्स बीन आस्क्ड इन सेवरल CBSE question papers. So I hope you find this video helpful. If you find, then please like, share, comment, and subscribe to my channel. It would mean a lot to me. So thank you guys for watching till the end.